السلام علیکم میرے سبھی لسنرز. آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر سمیرہ حمید کے ناول عشق آمد و من کے ساتھ، اور یہ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے. جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں. دعوت میں مصری مغنیاں اپنی آواز کا جادو جگا رہی تھی. باغ میں ہر طرف چہل پہل تھی. اکرما کے ساتھ وزیروں، تاجروں، پاشاہوں، عمرا سے ملتے ملتے وہ اتنا بیزار ہو چکا تھا کہ اس نے خوش دلی سے ہوں ہاں کرنا بھی بند کر دیا تھا. اس کی ساری تحمل مزاجی آنکھوں کی سختی کے راستے رخصت ہو جانے کو تھی کہ اکرما نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے محل کے اندر لے آیا تاکہ وہ اسے 9 وارڈ دکھا سکے جو مشیر خاص کی ملکیت تھے اور جن سے طرح طرح کے اعزازات منسلک تھے. اسے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، خاص کر دن میں آئینہ ٹوٹنے کے بعد سے، لیکن وہ باہر کے ہنگامے کی نسبت اندر کچھ سکون محسوس کر رہا تھا. میں ان کا باریک بنی سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اکرما سے جان چھڑانے اور کچھ وقت اکیلے رہنے کے لیے اس نے کہا. اکرما کا دل مغنیہ کی آواز میں اٹکا تھا. وہ یہاں اسے متاثر کرنے لایا تھا، لیکن یوں اس کے ساتھ بن کر بیٹھنے نہیں. اسے جلدی باہر آنے کا کہہ کر وہ چلا گیا. 9 وارڈ سے لباب بھرے کمرے میں وہ کچھ دیر یوں ہی ٹہلتا رہا، پھر چپ چاپ نشست پر بیٹھ گیا. اونچی دیواریں، قیمتی سامان آرائش، روشن فانوس، کم خواب کے پردے، منکش نشیں. وہ بیزاری سے ایک نظر دیکھ کر رہ گیا. اسے دولت کی نمائش نے کبھی متاثر نہیں کیا تھا. کچھ دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا، پھر ایک قدیم نایاب کتاب کی گردانی کی کوشش کرنے لگا جس کے حروف اتنے دھندلے اور مٹے ہوئے تھے کہ انہیں پڑھنے کی کوشش کرنے سے بہتر تھا کہ وہ اپنی آنکھیں پھوڑ لیتا. اپنی آنکھوں کو پھوڑنے سے بچانے کے لیے اس نے کتاب بند کر دی. مغنیہ اور اس کے سازندے خاموش ہو چکے تھے. اس سے پہلے کہ اکرما اسے باہر سے لینے آئے، اسے ہی اس کے پاس چلے جانا چاہیے. کمرے میں موجود 3 دروازوں میں سے وہ ایک دروازے سے باہر نکل گیا. راہداری سے گزرتے دوسرے کمرے کی کھڑکی سے اسے باغ نظر آ گیا. اکرما مجھے اتنا گھما کر اس کمرے میں کیوں لایا تھا؟ تاکہ میں پورے محل کی شان و شوکت سے متاثر ہو جاؤں. اسے غصہ آیا کہ باغ تو یہ کچھ دور سامنے ہی ہے. ہاں واقعی باغ تو یہ سامنے ہی تھا. لمبی راہداری ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ ایک ساتھ کئی نسوانی چیخیں اس کی سماعت سے ٹکرائی اور اس کے قدم جہاں تھے وہیں ساکت ہو گئے. راہداری جو باغ کی سمت محرابی برآمدے میں نکلتی تھی، اس کے آخری سرے پر کچھ لڑکیاں کھڑی تھیں. اسے دیکھتے ہی انہوں نے حیرت سے چیخ مار دی کہ ایک اجنبی مرد کا وہاں کیا کام. حواس باختہ ہو کر وہ جلدی سے واپس پلٹا اور کمرے میں گھس گیا. لیکن یہ کیا، یہاں بھی چند خواتین موجود تھیں. وہ اتنی بری طرح سے شرمندہ ہوا کہ سر جھکا کر تیزی سے باہر نکلا اور نہ جانے کتنے دروازے، کتنی راہداریاں، کتنے کمرے پار کرتے کرتے وہ تھک گیا، لیکن راستہ تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا. اسے اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی آواز بھی آئی، جیسے کوئی اسے غصے سے ڈھونڈ رہا ہو. شاید گھر کی خادمائیں. اگر ایسے وہ یہاں سے پکڑا گیا تو یہ تو شرمندگی کی انتہا تھی. نہ صرف وہ یہاں مہمان ہے بلکہ وہ اس شہر میں بھی مہمان ہے. وہ تیزی سے ایک سے دوسرے راستے کی طرف بڑھنے لگا، دروازوں کے پیچھے چھپ جاتا، ان کے پیچھے سے نکل آتا، کھڑکیوں سے جھانکتا، دیوان سے گزرتا، نشستوں کے اوپر سے پھلانگتا. اللہ اللہ، مدرسے میں جو اس نے سزائیں کاٹی تھی، یہ سزا ان کی سردار سزا تھی. شاید ساری خواتین باغ میں دعوت میں موجود تھی اور جو اکا دکا اندر تھی وہ ان سے ٹکرا رہا تھا، ورنہ اگر سب اندر موجود ہوتی تو سارا قونیہ دیکھتا کہ مشیر خاص نے مہمان خاص کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. راستہ تھا کہ مل نہیں رہا تھا اور وہاں کوئی مرد خادم نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی کہ ابھی تک وہ اسی حصے میں تھا جہاں مردوں کا داخلہ منع تھا. زندگی میں اس پر اس سے زیادہ برا وقت نہیں آیا تھا. سب دروازے، کمرے، دیواریں، کھڑکیاں پہلے ہی ایک اجنبی تھی یا اسے پریشان کرنے کے لیے ہو گئی تھی. وہ ایک دروازے میں گھستا تو دوبارہ گھوم کر وہیں آ جاتا. پھر اسے ایک کھڑکی سے باغ نظر آیا. باغ خالی تھا. وہ کھڑکی کے راستے ہی باغ میں کود گیا. مابعد دروازے سے نکلتے تو یہ باغ بھی ہاتھ سے جاتا رہے. واپس آئے تو کھڑکی ہی نہ ملے. باغ میں روشنی کم تھی. دور سے مغنیہ کی آواز آ رہی تھی، یعنی وہ ٹھیک سمجھ جا رہا تھا. اس خوشی میں کہ وہ ٹھیک راستے پر ہے، وہ اتنی تیزی سے قدم بڑھانے لگا کہ کسی سے ٹکرا گیا. ایک تیز سی اس کے کانوں سے ٹکرائی، پھر ایک چیخ، پھر 2 چیخیں. وہاں وہ کھڑی تھی، سراہی والی. اس کے ساتھ ایک بڑی عمر کی خاتون کھڑی تھی. اس نے جلدی سے چہرے پر کان سے پلو کھینچا.
खातून ने अलबत्ता ये ज़हमत नहीं की। कौन हो तुम? ऐसे यहाँ कैसे घूम रहे हो? खातून ने शाइस्ता अंदाज से पूछा। मैं वहाँ से। वो इतना हवास बाख्ता हो गया कि हाथ उठाकर मुगनिया की आवाज़ की सिमत इशारा करने लगा। दोनों ने गर्दनें घुमाकर उसकी तरफ देखा। वहाँ से? हाँ, वहीं से आए हो तुम, मशरक़ी सिमत की उस दीवार को फलांग कर। दीवार? नहीं, मैं तो वहाँ बाग से आया हूँ। खातून ने आंखें चुंधिया ली। बाग और वहाँ सब्ज़े के नाम पर वहाँ आज तक एक पत्ता नहीं खिला। उसकी पेशानी पर पसीना चमकने लगा। तो यह मुगनिया की आवाज़ फिर वहाँ से क्यों आ रही है? क्या वो दीवार फलांग कर गा रही है या बाग ही ने अपनी सिमत बदल ली है? मैं जनाब अब्दुल फत्ताह की दावत में शरीक हूँ। क्या जनाब अब्दुल फत्ताह ने चोरों को भी शिरकत की दावत देना शुरू कर दी है? मैं चोर नहीं हूँ, एक शरीफ और मुअज़्ज़िज़ इंसान हूँ। शरीफ और मुअज़्ज़िज़ इंसान दीवारें फलांग कर इधर उधर घूम रहा है। खातून महज़ूज़ हुई। मैं शरीफ ही हूँ, ये लड़की, ये मुझे जानती है। खातून ने हैरत से यशवीन को देखा। तुम इसे जानती हो यशवीन? उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि यशवीन, तुम इस चोर को जानती हो? वल्लाह, मैं नहीं जानती। बाग में रोशनी कम थी तो उसकी आंखों से निकलते शोलों ने उस कमी को पूरा कर दिया था। मैं आज ही तुम्हें बाजार में मिला था। वल्लाह, तुम बाजार में मिलती हो इससे? तुम ऐसे लोगों से मिलती हो लड़की? अल्लाह अल्लाह, मैं कब मिली हूँ? उसकी आंखों के शोलों की लिपटें बुलंद होने लगी। यानी मैंने उस दिन पानी मांगा, फिर आज बाजार में? उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी पहचान कर अपने शरीफ होने की ज़मानत हासिल करे। मुझे शक था तुम चोर हो, चोर ही हो। खातून के हुक्म से ज़रा सा नुमाया होते ही उसने कहा। मोहतरम खातून, मैं एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान हूँ। बाग से अंदर आया तो भटक गया हूँ, दोबारा बाग का रास्ता नहीं मिला। मेरा यकीन करें, वैसे भी आप मुझे समझदार लगती हैं, तो फिर बेहतर यही है कि आप समझदारी से काम लें और मुझे रास्ता समझा कर जाने दें। उसके चोर चोर की रट से वो घबरा गया। जितनी वो दाना थी, वो उसे चोर साबित कर सकती थी। बेहतर था वो खुद को मुअज़्ज़िज़ साबित करवा कर चला जाए। खातून सर हिलाती रहीं और उसे देखती रहीं। शुमार की सिमत चलते जाओ, फिर दाएं मुड़ जाओ। दीवार में दरवाज़ा है, वहाँ से दूसरी तरफ निकल जाना, सामने ही बाग नज़र आ जाएगा। अगर तुम्हारी शनाख्त के लिए मैंने किसी को बुलाया तो हम दोनों के लिए बेहतर नहीं होगा। वो शुमार की सिमत मुड़ गया, कुछ दूर चलकर रुक गया और पीछे देखा। यशवीन, जो उसे शाकी नज़रों से देख रही थी, उसने झट अपना मुंह वापस फेर लिया। तुम यहाँ रहती हो? नहीं, ये यहाँ नहीं रहती, उसके बजाय खातून ने जवाब दिया। फिर यहीं कहाँ रहती है? उसने खातून से ही पूछ लिया। खातून ने हाथ उठाकर दरवाजे की सिमत इशारा किया कि अब तुम जाना पसंद करोगी या ले जाए जाना? उसने जाना पसंद किया और छोटा दरवाज़ा खोलकर बाग की सिमत चला गया। आपने उसे जाने दिया? वो चोर था। वो चोर नहीं था प्यारी, वो सच बोल रहा था। तुम उसे नहीं जानती, लेकिन शायद वो तुम्हें बहुत ज़्यादा जानता है। ये तुम्हें पहली बार कहाँ मिला था? बाग में, मेरे फूलों के पास। मुझे हमेशा से मालूम था तुम्हारे वो चहीते फूल तुम्हें कोई अजनबी खुशबू देंगे। ऐसे ना कहें। वो शर्मा सी गई। देखो, तुम शर्मा रही हो, तुम्हारे गाल दहक रहे हैं। अच्छा ये बताओ, लैला के लिए जो मेहमान आए हैं वो कैसे हैं? उन्हें घर की कोई चीज़ पसंद नहीं आती। और लैला? आका दुराबी सफ़र से वापस नहीं आए, उनके आने तक कुछ नहीं होगा। तुमने भी नहीं देखा मेहमान को? नहीं। अजीज़ा से कहना मैं जल्द ही घर आऊँगी। तुम्हारा शुक्रिया प्यारी, तुमने मेरा हाथ थाम कर मेरे साथ चहलकदमी की। मेरी तबीयत का बोझलपन कुछ कम है अब। तुम्हारी बातों ने भी दिल को सुकून दिया है। तुम्हारे लिए ढेरों दुआएं। ये अजनबी अगर दोबारा मिले तो उसे बता देना कि तुम कहाँ रहती हो। यह ना हो वो शहर के एक एक आदमी को रोक कर पूछे कि यशवीन कहाँ रहती है। यशवीन ज़ेर लब मुस्कुरा दी। मुजीब दुराबी सफ़र से वापस आ गए थे। उनसे मुलाकात भी ऐसे ही रही जैसे बाबा से रहती थी। सर्द महल, तिजारती कड़ी। आज तक उसके बाबा ने अपने दस्तरखान पर किसी ऐसे शख्स को खाने की दावत नहीं दी थी जो उनके लिए मुनाफे बख्श साबित होने वाला ना हो। 1 साल पहले मुजीब दुराबी और उसके बाबा तिजारती काफ़िलों में हम सफ़र बने थे। उसे यकीन था कि वहीं उसके बाबा ने मुजीब दुराबी के सोने के दांत गिन लिए होंगे।
और यूसुफ को उन्हें पेश करने का फ़ैसला कर लिया होगा। मुजीब दुराबी ने भी उसे ठोक बजाकर देख लेने में दिलचस्पी ज़ाहिर कर दी। रात के खाने पर दावत के एहतमाम के साथ मुजीब दुराबी उसके सामने बैठे थे। सलाम दुआ के बाद उन्होंने उससे कोई बात नहीं की थी। निवाले मुंह तक ले जाते वो इसका जायज़ा लेते रहे थे। ऐसा सियाह फाम हबशी जो तुम जैसे जवान को उठाकर पटक दे, उसकी कम से कम कीमत क्या होगी? बात का आगाज़ ऐसे किया गया कि निवाला उसके मुंह में नमक बन गया। उसके चेहरे के अज़लात सिकुड़ गए। मुजीब दुराबी ने उसके चेहरे को भांप लिया। अपने बाप की तरह मंडी जाकर कभी कोई गुलाम नहीं खरीदा। उसे तो अपने गुलाम गिनती में याद हैं, तुम्हें कीमत में भी याद नहीं। मैं इंसानों की खरीद फरोख्त का कायल नहीं हूँ। मुजीब दुराबी ने अपने तासरात छुपा लिए और खामोशी से खाना खाने लगा। पहली मुलाकात की उस गुफ्तगू के बाद उनके दरमियान उस वक्त तक बात नहीं हुई जब तक मुजीब दुराबी के यहाँ एक बड़ी दावत का इंतज़ाम नहीं कर लिया गया। जो पहले अकरमा करता रहा था, अब वो मुजीब दुराबी कर रहे थे। उसे एक एक से ओहदे और इख्तियारात की फहरिस्त सुनाकर मिलवाया जा रहा था। वो जानता था कि मुजीब दुराबी और उसके दरमियान होने वाली पहली मुलाकात ज़रूरत से ज़्यादा तल्ख साबित हुई और उसने उस तल्खी को कम करने की कोशिश भी नहीं की। वो यहाँ आ गया था तो इसका मतलब ये नहीं था कि मुजीब दुराबी ने उसे किसी गुलाम की तरह ख़रीद लिया है। उसकी बरगुज़ेदा माँ खामोशी जिनका शुआर थी और उनके तीनों बहनें सब्र जिन पर फ़र्ज रहा था, उन्होंने उसे मजबूर किया कि वो एक बार बाबा के हुक्म पर अमल करके तो देखे। लड़कियाँ अच्छी ही होती है, वो लड़की भी अच्छी ही होगी। मैंने हमेशा वो किया है जो आपने कहा है, जो बाबा ने चाहा है। आपके अकेले रह जाने का ख्याल ना होता तो मैं कहीं भी भाग जाता, कोई भी काम कर लेता। अपने तिजारती काफिलों के साथ बाबा मुझे ज़बरदस्ती और हुक्मियाँ घसीटते रहे और मैं आपकी खातिर अपने दिल पर पत्थर रखकर उनके कारोबार में शरीक रहा। सरहदों के मुहाफ़िज़ों और इंतज़ामिया के साथ बाबा किस तरह मामलात को हतमी शक्ल देते हैं, ये बात मेरा सुकून बर्बाद करने के लिए काफ़ी रही है। मुझे कलम तराश कर उन्हें फ़रोग़ करना मंजूर है, लेकिन बाबा के कामों में शरीक होना नहीं। लेकिन आप यही कहती हैं कि मुझे बाबा को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, उनके हुक्म अदूली नहीं करनी चाहिए। हाँ यूसुफ, हुक्म अदूली ना करो, वहाँ खुले दिल से जाओ, अच्छे असबाब के लिए दुआ करो। मेरी तीनों बहनों को आपने यही बातें सिखाकर रुखसत कर दिया। एक की मालदार बूढ़े ताजिर से शादी कर दी गई, दूसरी को शेख की चौथी बीवी बना दिया गया, तीसरी को 2 बागों और कुछ आला नस्ल के घोड़ों के अवज़ बेच दिया गया। मुझसे भी यही चाहती हैं। तुम्हारी दायमी खुशियों के लिए दुआ गो हूँ यूसुफ, फ़िक्र न क्या करो, वहाँ खुश उम्मीदी लेकर जाओ। मुजीब दुराबी के करख चेहरे और तकब्बुर से सुखड़ी हुई आंखों को देखकर उसे माँ की खुश उम्मीदी खुश फहमी लगी। तुम्हें कवनिया पसंद नहीं आया? अपने जैसों के दिलों में मुजीब दुराबी ने पूछा। कवनिया को कौन नापसंद कर सकता है? एक ऐसा शख्स जो तुम जैसा खुदसर और बेवकूफ़ हो। पहली मुलाकात पर दस्तरखान पर की गई उसकी ज़ुबान दराजी का बदला मुजीब दुराबी ने यूं सरे महफिल लिया। सब हंसने लगे। हुक्के की ने मुंह में दबाए मुजीब दुराबी ने अपनी नोकीली नज़रों से बड़े शौक से उसे जताया। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ जो तुम्हारी ज़ुबान दराजी नज़रअंदाज कर दूंगा। उसे गुस्सा आया लेकिन वो ज़ब्त कर गया। उसने अपने घर में भी ऐसी ही बातें सुनी थी। वो माँ और तीनों बहनें बाबा के सामने ऐसे ही रोज़ाना बैठ जाते थे और उनकी फटकार सुनते थे। अपने बाबा को ख़त लिख दो वरना कोई आदमी चला जाएगा तुम्हारा पैगाम लेकर। शादी की तैयारियां मैं शुरू करवा लेता हूँ। उसे एक तरफ ले जाकर मुजीब दुराबी ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए आहिस्तगी से कहा। उसकी अना पर एक कारी ज़र्ब पड़ी तो बाबा ने उसे यहाँ भेजने से पहले ही बहुत कुछ तय कर लिया था। उसे बोरी में भरी जीन्स की तरह नमूने के तौर पर भेज दिया गया था। मैंने कभी मंडी से गुलाम नहीं खरीदे, लेकिन मैं एक मोअज़्ज़िज़ ख़ानदान के ज़ौजा को परखने के लायक हूँ। आपकी दुख्तर से मेरी शादी इस परख के बगैर मुमकिन नहीं होगी। माहौल एकदम नफरीन हो गया। मुजीब दुराबी ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। उसने कतन परवाह नहीं की। उसके शाने पर रखा हाथ नोकीला पंजा बन गया, जैसे उसकी गर्दन दबोच लेगा। अगले दिन उसकी मुलाकात करवाने का इंतज़ाम करा दिया गया। उसे दुख्तर दुराबी से मिलने की कोई चाहत नहीं थी, लेकिन रात माहौल और गुफ्तगू इस अंदाज में बदले कि वो मुजीब दुराबी की अना पर जवाबी ज़र्ब लगाए बगैर ना रह सका।
اب اس ملاقات سے بچ نکلنا ممکن نہیں تھا۔ یہ شادی اسے کسی صورت نہیں کرنی تھی، لیکن یہ ملاقات کرنی ہی تھی تاکہ مجیب درابی اور نذیر شرابی کو یکساں انکار کر سکے۔ وہ جا کر بھی گھر آئے مہمان کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ دونوں نے مردانہ بھیس بدلنے کے بارے میں بھی سوچ لیا تھا، لیکن پھر وہ اکرما سے ڈر گئیں۔ وہ مہمان خانے میں ہی سوتا تھا۔ پھر بابا درابی آ گئے۔ ماں نے کہا کہ مہمان اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کیا بات؟ وہ خوش ہونے سے پہلے گھبرا گئی۔ یشوین تمہارے ساتھ ہوگی، تم ایسے گھبرا کیوں رہی ہو؟ تمہارے بابا نے اجازت دی ہے۔ اس کے خیال سے تو یہ اجازت اس بیچارے کو بہت دیر سے ملی تھی، لیکن اب مل گئی تھی تو اسے خوف سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ تمہیں اس سے بات کرنی ہوگی یشوین، ہم پردے کے اس طرف ہوں گے، اسے معلوم نہیں ہوگا۔ اس نے سب یشوین پر چھوڑ دیا۔ لیکن شادی تمہاری ہے۔ شادی میں ہی کروں گی، لیکن بات تم کرو گی۔ بابا صلاح کہتے ہیں مجھے ہوش مندی کی ضرورت ہے۔ اگر اسے کم عقل لڑکیاں ناپسند ہوئیں تو تمہیں اپنے بارے میں ایسے ظالمانہ انداز میں نہیں سوچنا چاہیے۔ یشوین کو برا لگا۔ آج کے بعد نہیں سوچوں گی، بس آج ایک بار اس سے بات تم کرو گی، وعدہ کرو گی نا؟ اسے دیکھنے، اسے بات کرنے کے لیے تم اتنی بے قرار تھی، اور اب؟ ہاں تھی، لیکن اب تو میری جان نکل رہی ہے۔ اگر میں پردے کے اس طرف مر گئی تو زیادہ واویلا نہ کرنا۔ یشوین نے کہا لگایا۔ تو تمہارا مرنے کا ارادہ بھی ہے؟ کیا پتہ، میں اسے دیکھتے ہی مر جاؤں۔ میں مر جانا پسند کروں گا، لیکن دختر درابی سے شادی کرنا نہیں۔ مہمان خانے سے گھر کی طرف آتے اس نے سوچا۔ عزیزہ خاتون نے اس سے اس کا حال احوال پوچھا، کچھ دیر باتیں کی، اور پھر وہ کمرے سے چلی گئی۔ وہ کمرے سے چوبی منکش پردے کے اس طرف بیزاری سے بیٹھ گیا۔ پھر اٹھ کر اس نے کھڑکیاں بند کر دی اور پردے کھینچ دیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرف سے اسے کسی بھی سراغ سے ادھر دیکھ لیا جائے۔ اسے دختر درابی کو متاثر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ جب وہ دونوں کمرے میں آ کر چوبی پردے کے اس طرف کھڑی ہوئی تو انہیں کمرے میں روشنی بہت ناکافی لگی۔ جس طرف مہمان موجود تھا اس طرف تو بہت ہی زیادہ اندھیرا تھا۔ چپکے سے چوبی پردے کے ننھے ننھے سوراخوں سے جب انہوں نے آنکھ لگائی تو انہیں خاطر خواہ صورت نظر نہیں آئی۔ وہ چوبی پردے کی طرف پشت کیے نشست پر بیٹھا تھا۔ لیلا نے منہ بنا کر یشوین کو دیکھا اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ دکھائی نہیں دے رہا۔ یشوین نے بھی منہ بنا لیا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ اسے خادماؤں پر بھی غصہ آیا جنہوں نے کمرے میں مناسب روشنی کا انتظام نہیں رکھا تھا۔ یوسف کو محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں کوئی آ چکا ہے۔ اسے آنے والے کی چالاکی پر غصہ آیا کہ اپنی آمد کی آہٹ خفیہ رکھی تو رکھی، آواز دبا لی۔ مجیب درابی کے گھر والے بھی سبھی عیار ہیں۔ بس میں آپ کے بابا مجیب درابی اور آپ کے بھائی اکرما سے مل چکا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان سے ملاقات میرے لیے خاصی مایوس کن رہی ہے۔ اس گھر میں قیام بھی میرے لیے کسی خوشی کا باعث نہیں بنا۔ آپ سے ملاقات سے بھی مجھے کوئی خاص امید نہیں تھی۔ یوسف نے سیدھے لفظوں میں بس انکار ہی کر دیا۔ لیلا کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ یشوین نے چونک کر آڑ کی طرف دیکھا۔ یہ آواز، وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ لیلا نے اس کی کلائی کو شدت سے ہلایا کہ کچھ تو بولو، بلکہ فوراً بولو۔ یشوین اب لیلا کو کچھ بھی بتا دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ اسے اشاروں سے سمجھانے لگی، لیکن لیلا کچھ ایسی حواس باختہ تھی کہ بس رو دینے کو تھی۔ جس مہمان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے وہ بالائی منزل کی کھڑکیوں اور محرابوں میں ٹہلتی رہتی، وہ اس ملاقات سے ہی نا امید تھا۔ لیلا کے چہرے کے رنگ اور پھیکے پڑ گئے تو یشوین نے جلدی سے کہا، آپ نے اس گھر میں موجود ہر چیز کو ناپسند کیا ہے، ہر ایک پر اپنا غصہ نکالا ہے، پھر یہ گھر آپ کے اطمینان کا باعث کیسے بنتا؟ آپ کا دل تو شاید پہلے ہی نا امید تھا، پھر اسے یہاں آ کر اطمینان کیسے ملتا؟ سوال کے پورا ہونے سے پہلے آواز کی ابتدا نے یوسف کو چونکا دیا۔ وہ اس آواز کو کیسے نہیں پہچانتا؟ وہ ایک دم نشست سے اٹھا اور چوبی پردے کی طرف اپنا رخ کیا۔ ماں نے ٹھیک کہا تھا، لڑکیاں سبھی اچھی ہوتی ہیں، مجیب درابی کی بھی، لیکن اسے افسوس بھی ہوا کہ وہ مجیب درابی کی بیٹی ہے، اور یہ بھی کہ اس نے آتے ہی ایسی بات کہہ دی کہ شاید اس کا دل ٹوٹ گیا ہو۔ مجھے اعتراف ہے کہ میرا دل ہر طرح کی امید سے خالی تھا۔ مجھے اس سفر کی تمنا نہیں تھی، مجھے اس شہر سے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن اب میں نے اپنا یقین حاصل کر لیا ہے۔
तुम्हारी यहाँ मौजूदगी ने मुझे हर तरह से यकीन दिला दिया है। अब मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाना पसंद नहीं करूँगा। एकदम लैला के चेहरे पर रंगत लौट आई, लेकिन यशवीन का चेहरा तारीक हो गया। मैं चंद दिनों में लौट जाऊँगा, लेकिन जल्दी वापस आऊँगा। सफ़र बखैर, एकदम लैला के मुंह से निकला और यूसुफ को एहसास हुआ कि उसने कोई दूसरी आवाज़ सुनी है। उसे एहसास हुआ कि वहाँ पीछे दरअसल 2 लड़कियाँ मौजूद हैं। यशवीन ने अपना मुंह सी लिया। अल्लाह हाफिज़, फिर से लैला ने कहा और यशवीन का शाना हिलाया कि चलो उठो, चलें, वरना मैं तो मरने ही वाली हूँ और तुम वावेला शुरू कर दोगी। यूसुफ ने पर्दे की दूसरी तरफ हलचल महसूस की। शायद वो दूसरी लड़की यशवीन की सहेली थी। वहाँ सहेली को ही होना चाहिए था। यूसुफ मुस्कुराने लगा। अब वो अपनी सहेली को बताएगी कि यही वो लड़का है जो उसे बाग में मिला था, फिर बाज़ार में, और फिर से उस रात, और उसने उसे चोर बना दिया था। वो दोनों पीछे अभी भी मौजूद थी, वो जानता था। इसीलिए उसने पर्दे के साथ लगकर सर को दूसरी तरफ निकाल कर उसे एक नज़र देखना चाहा। वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ चुकी थी। उसने आहिस्ता से पुकारा, यशवीन। यशवीन ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। लैला जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। वो यशवीन को देख रही थी कि वो उसका नाम कैसे जानता है, और वो यशवीन को देख रहा था। ये किस कदर हसीन है, यूसुफ ने ज़ेरे लब कहा। ये कैसा सितम है, यशवीन ने ज़ेरे दिल सोचा। लैला वापस आने के बहुत देर बाद तक खुद को आईने में देखती रही। उसे एतराज़ रहा था कि उसने सही रंग का लिबास का इंतखाब नहीं किया, और वो उसे यकीन दिला रही थी कि रंग भी ठीक था और लिबास भी। वो उसे बता चुकी थी कि ये वही शख्स है जो पहली बार उसे बाग में मिला था। लैला ने नए सिरे से सारी बातें सुननी चाहिए, और इस बार यशवीन को कुछ बातें हज़फ करनी पड़ी। कमरे में उसके ज़ेवरात, लिबास, खुशबुएं बिखरी हुई थी। जब वो तैयार हो रही थी तो उसने सारे संदूक खोलकर उनका सामान बाहर फैला लिया था। वो सब अभी भी बिखरा हुआ था। सबसे पहले उसने अपनी कीमती ज़ेवरात उठाए और उन्हें यशवीन को दे दिया। इनकार न करना, यशवीन ने खामोशी से पकड़ लिया, एक तरफ रख दिए। जब वो खुश होती थी तो अपनी कीमती चीज़ें दे दिया करती थी, सबसे पहले यशवीन को, फिर घर की दूसरी खादमाओं को। मुझे ये सारी चीज़ें हेज लग रही हैं यशवीन। कभी मुझे ये कैसी प्यारी रही हैं ज़िंदगी में, इनका मतलब ही क्या है। तुम ये सब उठा कर ले जाओ और अपनी मर्ज़ी से खादमाओं में तकसीम कर दो। यशवीन खामोशी से लैला को देखती रही। तुम माँ को बता देना वो यूसुफ से हमारे रिश्ते का अहद लिए बगैर उसे जाने न दें। वो अब भी खामोश रही। वो दिन उसके दिल पर भारी रहा, वो रात उसके आसाब पर सवार रही। चिरागों ने धुआं देना छोड़ दिया। जो बिस्तर उसे इतने दिनों से काट रहा था, वो रात के रात ही नरम हो गया। खाना उसने कुछ इतना तनावुल कर लिया कि उसे चलना दोभर हो गया। पहली बार उसने बैग की आराइश पर गौर किया और उसे खूबसूरत पाया। माँ ठीक कहती है, जो हमें चाहिए होता है वो ऐन हमारी नज़रों के सामने ही होता है। हमारी बिनाई काम नहीं करती। जिस लड़की को वो सारे शहर में ढूंढने का इरादा रखता था, वो उसी घर में मौजूद थी, जिस घर में वो इतने दिनों से क़याम पजीर था। ये सच था कि उसने उस घर की किसी चीज़ को पसंद नहीं किया था और गाहे बगाहे अपना गुस्सा भी ज़ाहिर करता रहा था। लेकिन अब ये सब ख़त्म करना होगा। मुजीब दुराबी और अकरमा उसे अभी भी नापसंद थे, लेकिन अब उन्हें बर्दाश्त करना ही होगा। तो तुम इस घर के सबसे पुराने मुलाजिम हो? बाग में टहलते उसने एक खादिम से पूछा। बरजेस ने सर हिलाकर तायीद की। अपने मुशाहिदे और सूझबूझ की बिना पर वो यह जान गया था वो मुजीब दुराबी का हम मिजाज नहीं है। उसने ज़्यादा कुरेद नहीं की थी, लेकिन उसे अंदाज़ा था कि यूसुफ वहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आया था। दूसरे खादिम मेहमान यूसुफ से खाइफ रहते थे, लेकिन उसे यूसुफ अच्छा लगा था। मुजीब दुराबी जैसे आका के साथ तुमने इतने साल कैसे गुजार दिए? यूसुफ ने शरारत से पूछा। बरजेस मुस्कुरा दिया। रिज़्क़ के हुसूल के लिए मुस्तकिल मिजाजी और बर्दाश्त शर्त है। बहुत खूब, दानाई की बात की है तुमने। सख्ती के साथ दानाई आ ही जाती है। यूसुफ उसकी बात से खुश हुआ और उसे शब बखैर कहकर सोने के लिए चला गया। हौज़ के शफाफ पानी पर कुछ जुगनू उड़ते रहे। रात की तारीकी में कुछ राज सरनुगू रहे। सुबह उसकी आँख बाग में होने वाले शोर शराबे से खुली। नींद ऐसी गहरी तो नहीं थी, लेकिन जैसी भी थी वो कुछ देर और सोना चाहता था।
बाग में हौज के पास कुछ हलचल थी। उसने बिस्तर पर लेटे लेटे खिड़की की तरफ सर उठाकर बाहर देखना चाहा। सब्जे पर हौज के पास दस्तरखान लगाया जा रहा था। नींद उसकी आंख में थी। उसे मंजर साफ नजर आ रहा था। फव्वारी की बौछार के पार उसे यशवीन नजर आ रही थी। उसने अपनी आंखें मसली। ये कैसे मुमकिन था कि यशवीन वहाँ मौजूद होती जिस लड़की के साथ उसकी शादी की बात तय होने को थी। वो यहाँ मौजूद हो ही नहीं सकती थी। ये नामुमकिन था। रिवायत के खिलाफ वो बिस्तर से उठा और खिड़की में आकर खड़ा हो गया। वहाँ वही थी, यशवीन। वो खादमाओं और खादिमों को हिदायत दे रही थी, दस्तरखान लगवा रही थी, खाना रखवा रही थी। वो बुरी तरह से चौंका और अपनी जगह से हरकत ना कर सका। उसे कोई भी बात समझने में वक्त लगा। ये सब नज़र का धोखा लगा। अकरमा भी वहाँ आकर खड़ा हो गया। उसने एक चुभती हुई नज़र यशवीन पर डाली, लेकिन उसे कुछ कहा नहीं। अपने होने वाले दूल्हे के कमरे के ऐन सामने वो वहाँ कैसे खड़ी रह सकती है? उसे उसकी इजाज़त कैसे मिल सकती है? बरजेस ने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आ गया। नाश्ता तैयार है, आपका इंतज़ार किया जा रहा है। उसने अचंभे से बरजेस को देखा और फिर से खिड़की से बाहर। यशवीन बदस्तूर वहीं खड़ी थी, जैसे उसके इंतज़ार में थी। उसके खड़े होने का अंदाज़ मुअद्दब था, जैसे दूसरे खादमाओं का था। बरजेस ने उसके चेहरे की तरफ देखा और उसकी दानाई ने मेहमान की सूरत पर सिमट आने वाले तासुरात की हकीकत को बूझ लिया। वो वहाँ बाग में, यूसुफ ने यशवीन की तरफ इशारा किया। वो यशवीन है। सुबह का ये खाना आपके लिए इसी की तरफ से है, दुख्तर दुर्राबी, और आपकी मतवक्का शादी की खुशी में। उसने खिड़की से झटके से गर्दन घुमाकर बिरजेज को देखा। ठीक उसी वक्त यशवीन ने अपनी जगह से उधर खिड़की की तरफ देखा और उसने ये जान लिया कि मेहमान की गलतफहमी दूर हो गई है। यशवीन कौन है? यशवीन के मरहूम वालदैन इसी घर में खादिम थे। लैला ने उसे बहन बना लिया था और अजीज़ा खातून ने बेटी। यूसुफ के समझ में नहीं आया कि वो अगला सवाल क्या करे। वो सारी बात समझने की कोशिश कर रहा था। मुजीब दुर्राबी और अकरमा के लिए वो सिर्फ एक खादमा ही है। मिर्जेस ने उसकी सारी उलझन दूर कर दी। यशवीन ने एक नज़र फिर से खिड़की से नज़र आते यूसुफ के चेहरे को देखा और ये जान लिया कि बिरजेस अपना काम कर चुका है। घर के सब खादमाओं में वो सिर्फ बिरजेस पर ही एतबार कर सकती थी। रात को वो बिरजेस के कमरे में गई थी और उससे दरख्वास्त की थी कि वो किसी भी तरह मेहमान को उसकी हैसियत के बारे में बता दे। जिस तरह कल उसने कमरे में उसका नाम पुकारा था, उसे जान लेने में वक्त नहीं लगा था कि वो किस गलतफहमी का शिकार हो चुका है। यूसुफ शराबी यकटक उसे देख रहा था। उसने अपना रुख फेर लिया और बाग के सब्जे पर चलती दरवाजे से बाहर आ गई। अजीज़ा माँ और लैला नाश्ते पर उसका इंतज़ार कर रही थी। वो उनके पास बैठ गई। तुमने यूसुफ के लिए दस्तरखान लगाने का तरद्दुद क्यों किया? मुझे बुरा लगा। तुमने हमेशा अपने और लैला के दरमियान फ़र्क रखा है। ये उन दोनों के मतवक्का रिश्ते की खुशी में था। तुमने मेहमान के सामने खुद को खादमा की हैसियत से जाहिर किया। वो अभी सो रहे थे, मैं इंतज़ाम देखकर वापस आ गई। तो आज नाश्ता बाग में होगा? लैला ने चहचहा कर पूछा। यानी वो बालाई मंजिल पर जाकर उसे देख आए? यशवीन ने सर हिलाया। चन्ने वाले खाकर लैला बहाने से उठकर चली गई। लैला ने कहा है कि आप मेहमान से अहद लिए बगैर उन्हें जाने ना दें। वो कल से बहुत खुश है। आपने देखा नहीं उसका चेहरा कैसे खिला हुआ है। लेकिन तुम्हारा चेहरा क्यों कमलाया हुआ है? कोई परेशानी है? मुझे कोई परेशानी कैसे हो सकती है? आप और लैला मेरे साथ हैं। तुम लैला पर जान निछावर करती हो, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा मोहब्बत की कायल नहीं। मुझे हमेशा इस बात का खौफ रहता है कि तुम मेरी मोहब्बत को एहसान समझती हो और उसे किसी कर्ज की तरह चुकाना चाहती हो। मेरी बेटी, अगर ऐसा है तो कभी भी हमारी मोहब्बतों का एहसान चुकाने की कोशिश न करना। तुम खुद को दुखी कर लोगी। तुम्हारी प्यारी माँ ने मेरी बेटी के लिए जान दी थी। क्या मैं जहरा की बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकती? यशवीन की आंखें भीग गई। वो चाहकर भी कोई जवाब न दे सकी। कुछ देर बाद जब वो लैला के पास ऊपर गई तो वो मायूस सूरत खड़ी थी। वो तो बाहर आया ही नहीं। वो अभी तक सो रहा है या उसे भूख ही नहीं लगी? यशवीन ने हैरत से खाली बाग को देखा। दस्तरखान समेटा जा रहा था और मेहमान, वो कहाँ है?
مہمان شہر سے باہر اس باغ میں ٹہل رہا تھا جہاں وہ پہلی بار یشوین سے ملا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، ہر پہلو پر غور کر رہا تھا۔ فیصلہ وہ کر چکا تھا، لیکن اب اس فیصلے پر عمل درآمد کی فکر میں مبتلا تھا۔ شام کو وہ واپس آیا تو اسے پیغام دیا گیا کہ اسے مجیب درابی کے ساتھ ایک دعوت میں شرکت کرنی ہے۔ اس پیغام پر وہ بھنا گیا کہ ان لوگوں کو دعوتوں میں شرکت کرنے اور ان کا اہتمام کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں۔ صورتحال کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اپنے رویے میں لچک لائے، حالات کی نزاکت کا خیال رکھے۔ وہ دعوت میں آ گیا، گو یہ سب اس کے اعصاب پر بہت بھاری رہا۔ مجیب درابی وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ یوسف شراوی کے والد سے میری ملاقات تبریز میں ہوئی تھی۔ محصول سے کس طرح بچنا ہے وہ میں نے ان کے والد سے سیکھا۔ اشارے سے اسے اپنے پاس بلا کر انہوں نے کہا۔ ان سب کے کہکہوں سے یوسف نے اپنے دماغ کے رگوں کو تنگ ہوتے پایا۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ تم بھی کچھ کر کے دکھاؤ، مجیب درابی نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا۔ شہر کے معززین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یوسف نے ناپسندگی سے مجیب درابی کو دیکھا۔ میں اپنے والد کے ہر غیر قانونی عمل سے نالاں ہوں۔ اپنے والد کی ایسی تجارت سے کوئی مجھے سروکار نہیں۔ یکدم سکوت چھا گیا۔ مجیب درابی نے اس کی جرأت کو حیرت سے دیکھا، پھر بات آگے بڑھائی۔ اب تم میرے داماد بن چکے ہو، تمہارے والد کی طرح میں ان معاملات میں نرمی نہیں برتوں گا۔ میں تمہیں سکھاؤں گا کہ جوان جوشیلے خود سر غلام کو کیسے سدھایا جاتا ہے، اس کے غرور و تکبر کو کس طرح کچلا جاتا ہے، اس کی طاقت میں نکیل ڈال کر کیسے لگامیں اپنے ہاتھ میں رکھی جاتی ہیں، کیسے اسے صرف غلام بنا کر خود کو اس کا آقا بنایا جاتا ہے۔ مجیب درابی کی آواز نیام سے نکلی تلوار تھی، انداز للکار، ہدف اس کی غیرت کا سر قلم کر دینا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کس غلام کی بات کی جا رہی ہے اور کون آقا بننے والا ہے۔ میں آپ کا داماد بن جاؤں، یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ آقا و غلام کا یہ کھیل مجھے منظور نہیں۔ میں اپنا اسباب سمیٹ چکا ہوں۔ اس ملاقات کو خدا حافظ سمجھا جائے۔ مجیب درابی اسے نذیر شراوی سمجھا تھا، جو اس کی تربیت کا آغاز ایسے سرے محفل شروع کر دیا تھا۔ اس کی خود سری کا سر کچل دینے کی ترکیب اس کا سر قلم کر دینے کی ترغیب بن گئی۔ مجیب درابی نے اس جوشیلے جوان کو ترہم سے دیکھا۔ ترہم سے اسے مجیب درابی کے ساتھ بیٹھے لوگوں نے بھی دیکھا۔ مجیب درابی کی ساری دولت، رتبہ، جاہ و جلال اپنے پیروں میں روند کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ان سب سے دور ہوتا گیا۔ اکرمہ اس کے پیچھے لپکا اور اسے تیش سے رک جانے پر مجبور کر دیا۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ اکرمہ نے اس کے بازو میں اپنا ہاتھ گاڑ دیا۔ یوسف نے تحمل سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے پرے کیا۔ مجیب درابی تمہارے والد ہیں، میں ان کا غلام نہیں ہوں۔ میں جان چکا ہوں کہ وہ کیا ہیں۔ مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ میں اور زیادہ سختی سے پیش آؤں۔ تم میرے باپ کے ساتھ سختی سے پیش آؤ گے؟ اکرمہ استہزائیہ ہنس دیا۔ بہتر ہے کہ معاملات کو زیادہ نہ بگاڑا جائے۔ میں تمہاری ہمشیرہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس انکار کا اختیار ہے؟ یوسف نے حیرت سے اکرمہ کو دیکھا۔ آخر یہ لوگ اسے سمجھ کیا رہے تھے؟ انہیں کیوں یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے سارے اختیارات ان کا مہمان بنتے ہی ان کے ہاتھ میں دے چکا ہے؟ کیا اس کے رد عمل نے انہیں ضدی بنا دیا ہے یا وہ پہلے سے ایسے تھے؟ تم نے اس طرح بابا کو سرے محفل انکار کر دیا۔ تم نے انہیں خفا کر دیا ہے۔ بہتر ہے تم ان کے پاس واپس جاؤ اور اپنے الفاظ واپس لے لو، معافی مانگ لو۔ یوسف نے اس خود سر اور متکبر انسان کو غصے سے دیکھا۔ اس نے صاف صاف بات کر لینے کا فیصلہ کیا۔ مجھ پر اپنا حکم ایسے نہ چلاؤ اکرمہ۔ جس خیال کے تحت میں تمہیں جھیل رہا ہوں میں اسے ترک کرتا ہوں۔ یشوین سے نکاح کی اجازت میں خاتون درابی سے بآسانی لے لوں گا۔ یشوین؟ اکرمہ نے زیر لب یہ نام دہرایا اور اسے ساری بات سمجھنے میں وقت نہ لگا۔ لباس میں چھپے خنجر کو یکدم نکال کر اس نے یوسف کے دل کی طرف وار کرنا چاہا، لیکن یوسف نے بروقت اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک خنجر میرے لباس میں بھی ہے اکرمہ۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ حقہ پیتے اپنے باپ کے کانوں میں اکرمہ نے آ کر سرگوشی کی اور مجیب درابی کی صورت تلوار کی دھار بن گئی۔ ایک لمحے کی تاخیر کو بھی گناہ سمجھتے اور شہر کے راستوں پر اندھا دھند گھوڑا دوڑاتے وہ واپس آیا اور اپنا اسباب سمیٹنے لگا۔ سارا دن وہ معاملات کو
खुश असलूबी से निपटाने के बारे में सोचता रहा, लेकिन रात ने उन मामलात को उसके हाथ से निकाल दिया था। वो मुजीब दुर्राबी से यशवीन के लिए बात करना चाहता था, लेकिन अब ये किसी तरह मुमकिन नहीं हो सकेगा। वो जान गया था। उसने ब्रिजेश के हाथ यशवीन को पैगाम भिजवाया। यशवीन अपने कमरे में चुपचाप खामोश बैठी थी। उसका दिल उस अजनबी की तरफ माइल हो चुका था जो शहर में गाहे बगाहे उससे मिलता रहा था। वो अजनबी लैला के लिए आने वाला मेहमान है। उस हकीकत ने उस पर बड़ा कहर बरसाया था। ब्रिजेश ने आकर यूसुफ का पैगाम दिया तो जैसे उसका दिल बंद हो गया। बेयकीनी से वो ब्रिजेश को देखती रही। मेहमान ने मुझे क्यों बुलाया है? ये ठीक नहीं। वो जा रहा है, बहुत जल्दी में है। ब्रिजेश सारी कहानी तो समझ ही चुका था। अब वो उसे मशवरा दे रहा था। जा रहा है? यशवीन को हैरत हुई। ऐसे कैसे? क्या शादी के मामलात तय हो चुके हैं? वो शशोपंच का शिकार हो गई। देर न करो यशवीन, वो एक शरीफ इंसान है, कम से कम इस घर के हर मर्द से ज़्यादा। नाचार ब्रिजेश के पीछे पीछे चलती वो इस कमरे के खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। ब्रिजेश कमरे के अंदर चला गया और कुछ ही देर में खिड़की के पास वो आकर खड़ा हो गया। वो खिड़की के ओट में इस तरफ खड़ी हो गई और वो उस तरफ। दोनों की सूरत एक दूसरे से ओझल रही। मैं जा रहा हूँ, मुजीब दुर्राबी से मैंने माजरत कर ली है। मैं उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। उन अल्फाज ने उसे बेहद तकलीफ़ दी थी। वो मुजीब दुर्राबी के मिजाज से वाकिफ़ थी। उन्होंने यूसुफ को भी नाराज़ कर दिया था, लेकिन लैला, उसका क्या कसूर था? आपने ऐसा क्यों किया? लैला मासूम दिल लड़की है, उसके दिल को ऐसे तकलीफ़ न दें। यूसुफ ने खुद को खिड़की में इस तरह नुमाया कर दिया कि दोनों का चेहरा आमने सामने आ गया। यशवीन रो रही थी। वो खुले आसमान से झांकते चांद और बाग की मेहराबों में रोशन मशअलों के पसे मंज़र में उसकी बेबसी पर दिल गिरफ्ता हुए बगैर नहीं रह सका। लैला मासूम दिल, फरिश्ता सीरत लड़की होगी, लेकिन मैंने जिसकी सुराही का पानी बहा दिया है, मैं उसकी मोहब्बत में बह जाने का अहद कर चुका हूँ। मोहब्बत हमेशा लाइल्मी में होती है और मासूमियत से आश्कार होती है। मैं तुमसे अपनी मोहब्बत के एहसास को पा चुका हूँ। मैं अपना अहद तुम्हें देता हूँ। वो बेयकीनी से यूसुफ को देख रही थी। उसके दिल की धड़कन उसके लिए मौत बन गई। हौज का पानी बहने लगा, बाग का सब्ज़ा शोला हुआ, सब मेहराबें घूम गई और उसने खुद को सारी दुनिया से दूर ले जाना चाहा। वो एकदम तेज़ी से भागी। यूसुफ जल्दी से कमरे से बाहर निकला। वो उसे आवाज़ें देने लगा वो रुक जाए, लेकिन वो मेहराबों के सतूनों से टकराते, बाग के सब्ज़े पर भागते, सर पर आ गिरने वाले आसमान से बचते, खुद को यूसुफ की पहुंच से दूर ले जाते। बाग के दरवाजे से बाहर निकल गई और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। ब्रिजेश उस वाक़ये का अकेला गवाह बना वहाँ खड़ा रहा। यूसुफ ने बाग के दरवाजे से लौटकर बहुत दुख से ब्रिजेश को देखा। क्या वो इसलिए भाग गई कि उसे अपने आकाओं से वफादारी निभानी है? हाँ, और इसलिए भी कि उसे लैला के दिल को ठेस नहीं पहुँचने देनी। इस घर में दाखिल होने से भी पहले मैं उससे शादी का इरादा कर चुका था। फैसला तो बहुत पहले ही हो चुका था। यूसुफ, वापस लौट जाओ। जो बात ब्रिजेश कहना चाहता था उसने आखिर कह दी। अब इस शहर में तुम्हारा रहना ठीक नहीं। तुमने सुना नहीं? अभी एक लड़की को मैंने अपनी मोहब्बत का अहद दिया है। उस अहद को पूरा किए बगैर मैं कैसे लौट सकता हूँ? उसने ब्रिजेश की आंखों में आंखें डालकर कहा। अकरमा जानता था कि वो उनके घर से भी जा चुका है, लेकिन उसने अपने बाप के इशारे का एहतराम किया कि वो यहाँ से कहीं ना जाए, लोगों को और बातें बनाने का मौका ना दिया जाए। मौका उन्हें मिल चुका था। अकरमा के लिए उस तमस्कर को झेलना मुहाल हो गया जो उन लोगों की आंखों से झलक रहा था जो यूसुफ के इनकार के वक्त वहाँ मौजूद थे। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा और बात एक कान से दूसरे कान तक पहुँच गई। वो जानता था कि जितने लोग वहाँ मौजूद हैं वो उसके बाप को पसंद नहीं करते। वो या उनसे दबते हैं या डरते हैं। वो उसके बाप की बेइज्जती से महजूज हुए हैं। उन्हें यूसुफ की खुदसरी पसंद आई है। हो सकता है कल कुछ लोग यूसुफ को ढूंढ कर उसे शाबाश दें और कुछ लोग यूसुफ को मुजीब दुर्राबी के सामने डटकर खड़ा होने के लिए अपने सहारा पेश करें। जब तक दावत बर्खास्त नहीं हुई वो दोनों वहाँ मौजूद रहे। मुजीब दुर्राबी ने लोगों की नज़रों में नज़रें गाड़ दी और अपनी दहशत से किसी को मौका नहीं दिया कि कोई उससे सवाल कर सके। वापसी पर वो तेज़ी से अपने घोड़ों की तरफ आए। उसे शहर से जाने न देना,
घोड़े पर सवार होते हुए मुजीब दुर्राबी ने अकरमा से कहा। अकरमा ने सर हिला दिया। घोड़े की गर्दन में उंगलियां गाड़कर लगाम को झटका देकर एड़ लगाने से पहले ये भी कहा, अल्तमूश को पैगाम भेजो, एक बांदी है, आकर खरीद ले। जिस वक्त वो शहर के सिराय के बिस्तर पर दराज हुआ, उसने अपनी माँ को याद करना शुरू कर दिया। माँ कहा करती है कि दिल से याद करो तो बात उस दिल तक पहुँच जाती है जिस तक पहुँचानी हो। उसने माँ के दिल को पहला पैगाम भेजा कि उसे ऐसी लड़की से मोहब्बत हो चुकी है जिसके आका को उससे नफ़रत हो चुकी है। मुजीब दुर्राबी की आंखें नफ़रत व गुस्से से सिकुड़ गई। अफसोस कि मेरी जल्दबाजी ने उन्हें महफिल में शर्मिंदा किया। मुझे खौफ है कि यशफीन का हाथ वो किसी अदना खादिम के हाथ में दे देंगे, लेकिन मेरे हाथ में हरगिज़ नहीं। बिरजेस का कहना है कि यशफीन हर सूरत मुजीब दुर्राबी का हुक्म ही मानेगी। मुजीब दुर्राबी जैसे इंसान से अपनी वफादारी निभाना चाहती है। मैं खातून दुर्राबी से बात करने की पूरी कोशिश करूँगा। वो आपकी तरह दरवेश सिफ्त लगती हैं। उनसे मुलाकात के दौरान मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मुजीब दुर्राबी की शख्सियत से बिल्कुल उलट हैं, जैसे आप और बाबा। अब मुझे यही रहकर मामलात को निपटाने की कोशिश करनी है। आप मेरे लिए दुआ करें। माँ से बातें करने के बाद वो सो गया। रात में कई बार उसकी आँख खुली और उसे चिराग की टिमटिमाती लौ में यशफीन की आंखों का खौफ शक्लें इख्तियार करता दिखाई दिया। दीवार पर पड़ने वाली रोशनी बाग में भागती यशफीन की याद दिलाती रही। चिराग की लौ ने यूसुफ के हाथ का लिखा हुआ पैगाम जला दिया। घर में 2 अफराद के अलावा किसी को खबर नहीं हुई थी कि मेहमान जा चुका है। यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन शहर में उस वक्त तक मौजूद रहूँगा जब तक खातून दुर्राबी से हमारे लिए बात नहीं कर लेता। हमारे लिए खत जल चुका था, लेकिन उसके हुरूफ जलने से कासिर रहते। वो फूट फूट कर रोने लगी। लैला की तरह उस घर में परवरिश पाने के बावजूद वो रोज़ अव्वल से ये जानती थी कि एक दिन आएगा और आका दुर्राबी के इशारे पर उसकी किसी भी गुलाम से शादी कर दी जाएगी। अगर माँ अजीज़ा की दरख्वास्त मान भी ली गई तो उसे एक अच्छा घर नसीब हो जाएगा। लैला की तरह उसने कभी किसी शहजादे के ख्वाब नहीं देखे थे। उसने ज़िंदगी को हमेशा हकीकत की नज़र से देखा था। बेशकीमती लिबास पहनते हुए, लैला के तहाइफ को कान, हाथ, सर पर सजाते हुए भी आईने में जब वो अपनी खूबसूरती को देखती, तब भी उसे याद रहता कि वो एक खूबसूरत कनीज़ है। और बस ये खूबसूरत कनीज़ आका दुर्राबी के मेहमान को, लैला के लिए आने वाले यूसुफ को कैसे कोई उम्मीद दे देती। सुबह की पहली किरण के साथ वो बिरजेस के कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी। क्या हुआ, खैरियत है? वो आंखें मलता हुआ बाहर आया। वो शर्मिंदा हुई कि उसने उसे नींद से जगा दिया। मैं यूसुफ से मिलना चाहती हूँ। वो कहाँ है? शहर के सिराय में। मैं सिराय तो नहीं जा सकती। मैं उसे शहर से बाहर बाग तक ले आऊँगा। यशफीन ने कुछ देर सोचा और हाँ में सर हिला दिया। ठीक है। मेहमान खाने की खादमीन से होती हुई बात माँ अजीज़ा के कानों तक आई कि मेहमान कल रात वापस नहीं आया। माँ अजीज़ा ने अकरमा को बुलाकर पूछा, यूसुफ कहाँ है? अपने एक दोस्त के घर, उसने इत्मीनान से कहा। लेकिन वो तो यहाँ अजनबी था। कितने दिनों से वो इस शहर में रहा है। दोस्त बन चुके हैं उसके। आप फिक्र न करें। यशफीन कहाँ है? वो बाग तक गई है। अच्छा। अकरमा ने अपनी अकड़ी हुई उंगली को चटकाया और बाग की सिमत जाने के लिए घर से निकला। यूसुफ सिराय में है, वो ये जानता था। उसे शहर से निकलने में जल्दी नहीं है, ये भी। अल्तमूश को पैगाम भिजवा दिया गया था। अकरमा का बस नहीं चल रहा था कि वो उस 2 कौड़ी की कनीज़ की गर्दन सरे बाजार काट कर नेज़े पर टांग दे और ऐलान करे, देखो नमक हरामों का अंजाम। जब वो बाग में पहुंची तो उसे दूर यूसुफ का घोड़ा घास चरता हुआ दिखाई दिया। यूसुफ उसके करीब एक दरख्त के साथ पुष्ट लगाकर बैठा था। उस लापरवाह बेफिक्रे इंसान ने हमारी ज़िंदगी को बेचैनी से भर दिया है, उसने दिल ही दिल में सोचा। वो कुछ इतने गुस्से में थी कि सुराही में एक खंजर छुपा कर लाना चाहती थी ताकि मौका मिलते ही उसके पेट में घोंप दे। हाथ में पकड़ी सुराही को उसने ज़मीन पर पटका तो उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। तुम आ गई यशफीन? वो उठकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें अपना नाम लेने की इजाज़त नहीं देती। तुम्हारे पास इसका हक है न होगा। तुम्हें किस बात ने मुझसे इतना बदजन कर दिया है? यूसुफ ने संजीदगी से उससे पूछा।
मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या दुख होगा कि मेरी बहन के लिए मेहमान बनकर आने वाला इंसान उससे यूं बेजारी का अंदिया दे रहा है जो उस जैसे हीरो को ठुकरा सकता है। मुझे उस पत्थर में कोई दिलचस्पी नहीं। तुमने मेरी बहन की अना को ठेस पहुंचाई है। मैं ऐसे शख्स को एक ही सूरत माफ़ कर सकती हूँ कि वो अपने अल्फाज वापस ले ले, माँ अजीज़ा, और मुजीब दुराबी के हाथ को चूमकर आंखों से लगा ले। यूसुफ तन से हंस दिया। तुम्हें किस चीज़ ने मुजीब दुराबी के इस दर्जा वफादार गुलाम बना दिया है? यशफीन ने ठटक कर यूसुफ को देखा। मैं उनकी कनीज़ हूँ, लैला मेरी बहन है। अगर तुम उनकी कनीज़ ना होती तो लैला के बजाय तुम्हारा नाम लेने पर अकरमा मेरे खून का प्यासा ना हो जाता। मामलात के इस दर्जा बिगड़ जाने की यशफीन को तवक्को नहीं थी। यूसुफ के बात ने उसे हद दर्जा परेशान कर दिया। मैं ये कहने आई हूँ कि यूसुफ जैसे 100 आकर भी मेरे सामने खड़े हो जाए तो वो लैला जैसे किसी एक की जगह नहीं ले सकेंगे। मैं अपनी गर्दन काट लूँगी, लेकिन उसके दिल को ये तकलीफ़ नहीं दूँगी। उसने यूसुफ के दिल में मौजूद उम्मीद की ज़रा सी रमक को भी मिटा डालना चाहा। यूसुफ उसके मुंह से ऐसी ही कोई बात सुनने की तवक्को कर रहा था। वो मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। यशफीन ने उसे कड़ी नज़रों से देखा। लैला को अहद देकर लौट जाओ, मुझसे किसी अहद की उम्मीद न रखना। मैं उस वक्त तक इस शहर से नहीं जाऊँगा जब तक तुम्हें यकीन ना आ जाए कि तुम्हारा मेरे रास्ते में आ जाना अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है। अपनी वफ़ादारी को अल्लाह की मर्ज़ी पर गालिब ना करो। जो आसमानों पर तय हो चुका है उसे ज़मीन पर बदलने की कोशिश करना छोड़ दो। उसने उस मुसाफिर अजनबी मेहमान यूसुफ को देखा और एक लम्हे के लिए उसकी सांस थम गई। अगर तुम्हें अपना नमक हलाल करना है तो मुझे अपना अहद वफ़ा करना है। पटक कर फेंकी गई सुराही उठाकर यूसुफ ने उसके हाथों में दी और उसकी आंखों की बुझी लौ को अपनी रोशन आंखों से मनव्वर करना चाहा, लेकिन नाकाम रहा।